Hello everyone. Today we are going to study genetic disorders from class 12 NCERT. Pedigree analysis, Mendelian disorders, इसमें ये फिर उस पर chromosomal disorders, ये 3 topics हैं इसमें. पहले pedigree analysis पढ़ते हैं. The idea that the disorders they are inherited has been prevailing in the human society since long. This was based on the inheritability of certain characteristic features in the families. So after the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing the inheritance pattern of traits in the human beings began. Since it is evident that control crosses that can be performed in pea plant or any other organism, they are not practically possible in case of human beings. The study of the family history about inheritance of a particular trait provides an alternative. Such an analysis of the traits in several of generations of a family is called pedigree analysis. In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over the generations. In the human genetics, the pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a particular specific trait, abnormality or disease. So some of the important standard symbols that are used in pedigree analysis, ये एक figure है ये वाला 5.13. इसको देखो. That square represents the male, circle represents the female. This type figure, sex is unspecified. These were light colored. When it's shaded or it's black colored, they are the affected individuals of that particular sex. Then mating के लिए दिया हुआ है. Mating between relatives, मतलब जिसको consanguineous marriages या फिर consanguineous mating बोलते हैं, उसमें डबल लाइन आ जाती है. फिर पेरेंट्स जो ऊपर वाला होता है वो पेरेंट्स के लिए होता है, और चिल्ड्रन दे आर रिप्रेजेंटेड बिलो दैट द एफरेंट जनरेशन इन ऑर्डर ऑफ द बर्थ लेफ्ट टू राइट. मतलब जो पहला जो भी ऑफस्प्रिंग होगा वो पहले है, फिर दूसरा, फिर तीसरा इन द सेम रो. देन पेरेंट्स विद द मेल चाइल्ड विच इज़ इफेक्टेड विद द डिजीज़. एंड जब कोई ऐसा बॉक्स दिया हुआ है तो उसमें उसके अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है, इसके अंदर कि उतने टाइप के 5 या फिर जो भी नंबर लिखा हुआ उतने नंबर के ऑफस्प्रिंग्स होंगे. तो जैसे यहाँ पे 5 अनएफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैं क्योंकि ये शेडेड नहीं है. अच्छा, so as you have studied in this chapter that each and every feature in any organism is controlled by one or the other gene that is located on the DNA that is present in the chromosome. So DNA is the carrier of genetic information. It is therefore transmitted from one generation to the other without any change or alternation. So however the changes or alternation do take place occasionally. Such an alternation or the change in the genetic material is referred to as mutation. A number of disorders in human beings have been found to be associated with the inheritance of changed or altered genes or chromosomes. Mendelian disorders. See, broadly बात करें तो फिर genetic disorders may be grouped into 2 categories. एक होते हैं Mendelian disorders, एक होते हैं chromosomal disorders. जो Mendelian disorders होते हैं they are mainly determined by alternation or mutation in a single gene. And these disorders they are transmitted to the offsprings on the same lines as we have studied in the principle of inheritance. The pattern of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in a family by the pedigree analysis. Most common and prevalent Mendelian disorders are hemophilia, cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria, thalassemia. It is important to mention here that such Mendelian disorders may be dominant or may be recessive. So by pedigree analysis, one can easily understand whether the trait is in the question is dominant or recessive. Similarly, the trait may be linked to the sex chromosome as in case of hemophilia. It is evident that this X-linked recessive trait shows the transmission from the carrier female to the male progeny. A representative पेडिग्रीज जो कि अभी नीचे दोनों के दोनों जो पेडिग्री दी हुई है इन दोनों पे ही क्वेश्चन आता है और एग्जैक्ट यही पूछा जाता है बस. द फर्स्ट वन इज फॉर अब देखो पहले इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेडिग्रीज फॉर कैरेक्टर्स लिंक टू बोथ ऑटोजोम्स एज वेल एज सेक्स क्रोमोसोम. दोनों टाइप की पेडिग्री है. जो पहली वाली है ए वाला दैट इज द मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की पेडिग्री दी हुई है. ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट. और जो सेकंड वाला है दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट सिकल सेल अनीमिया का. जो पहला वाला है उसको अगर हम देखें तो ये ऑटोसोम डोमिनेंट है. इसका मतलब कि जैसे कि फीमेल है उसमें और मेल है तो मेल तो पूरा हेल्दी है, पर जो फीमेल है वो मतलब कि डोमिनेंट है, उसका मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट है और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का उसके पास जीन है जिसकी वजह से वो इफेक्टेड हो गई. अब इसकी जो
क्योंकि ऑटोसोमल है और इसके ये जो सारे के सारे बच्चे हैं इसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि ये इफेक्टेड भी हो सकता है नहीं भी। तो आप देखो इसके 4 बच्चे हैं एंड 2 ऑफ देम दे आर इफेक्टेड एंड 2 ऑफ देम आर हेल्दी, सो देयर इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी कि कौन इफेक्टेड और कौन नहीं है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट है, तो जाहिर सी बात है कि जब जो इफेक्टेड थी फीमेल उसका F1 जनरेशन वाली, उसने जब एक हेल्दी मेल के साथ फिर क्रॉस किया तो जो इसका जो एक ऑफस्प्रिंग है वो तो निकल रहा है अनहेल्दी, दैट इज़ इफेक्टेड, और बाकी सारे निकल रहे हैं हेल्दी। सो दिस इज़ जस्ट कि ऑटोसोम डोमिनेंट है। तो जैसे कि वो होता है ना कैपिटल A स्मॉल a इंटू स्मॉल a, तो ये वो वाला क्रॉस हो गया। तो उसमें प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, कैपिटल A छोटा a एंड छोटा a, दैट इज़ AA, मतलब समझ रहे हैं ना। तो 1:1 का प्रोबेबिलिटी होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट जो है सिकल सेल में, आप इसमें देखो कि जब तक जैसे दोनों के दोनों जब तक रिसेसिव नहीं होंगे तब तक वो ट्रेट मतलब पास ऑन नहीं हो सकता, मतलब कि वो दिखेगा नहीं उसमें। तो जैसे कि इसमें जो पेरेंट्स थे वो तो हेल्दी है दोनों के दोनों, और जो F1 जनरेशन बन रही है उसमें 2 आपको अनहेल्दी दिए हुए हैं, तो वो जो हो जाएंगे वो छोटा है टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। और यप लिखते जाओ। मतलब यू कैन ईजिली आइडेंटिफाइड कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हर एक ईजी तरीका जो इसका है कि डोमिनेंट या रिसेसिव है, तो डोमिनेंट होगा ना तो हर एक स्टेज, चाहे पेरेंट की लेवल हो, F1 लेवल हो, F2 लेवल हो, आपको हर लेवल पे उसका कोई ना कोई इफेक्टेड इंडिविजुअल दिखेगा। पर अगर कोई भी एक लेवल है जिसपे उसका इफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं है तो डोमिनेंट ट्रेट नहीं होगा, वो रिसेसिव हो जाएगा फिर, ठीक है। ओके, कलर ब्लाइंडनेस, दिस इज सेक्स लिंक्ड एंड रिसेसिव है, ठीक है। तो it is a sex-linked recessive disorder due to the defect in either red, green cone of the eye, resulting in the failure to discriminate between the red and the green color. This defect is due to the mutation in certain genes that are present in the X chromosome. It occurs in about 8% of the males and about 0.4% of the females. अब आप सोचोगे कि ये जो है कलर ब्लाइंडनेस वो इतना मेल्स में क्यों है और इतना कम फीमेल्स में क्यों है। हमारे यहाँ से बस 0.4% एंड द मेल्स इट्स 8%. दिस इज बिकॉज द जीन्स दैट लीड टू द रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस दे आर ऑन द X क्रोमोसोम, और मेल्स हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम, इसी वजह से उनको हेमिजाइगस बोलते हैं, एंड फीमेल हैव 2. So the son of a woman who carries the gene has a 50% chance of being colorblind, and the mother is not herself colorblind because the gene is recessive. That means that its effect is suppressed by her matching dominant normal gene. A daughter will not normally be colorblind unless a mother is a carrier and her father is colorblind. Okay? Yeah. Hemophilia, ये भी sex linked और recessive ही है. So it is a sex linked recessive disorder and which shows its transmission from the unaffected carrier female to some of the male progeny that has been widely studied. In this disease, a single protein that is a part of the cascade process, वो जो पूरा होता है ना coagulation के लिए, क्लॉटिंग के लिए जो पूरे प्रोसेस होता है जिसको कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये अगर हीमोफीलिया हो जाता है तो इन दिस डिजीज़ अ सिंगल प्रोटीन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन दी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज इफेक्टेड. एक प्रोटीन इफेक्ट हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है कि एक इफेक्टेड इंडिविजुअल in an affected individual, a simple cut will result in non-stop bleeding. The heterozygous female that is a carrier for hemophilia may transmit the disease to the sons. The possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare. क्यों? क्योंकि mother of such a female has to be at least a carrier and the father should be hemophilic unviable in the later stage of life. The family pedigree of Queen Victoria shows a number of hemophilic descendants, और इसी वजह से इस डिजीज़ को हम रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के डिसेंडेंट्स में देखी गई थी as she was a carrier of this disease. अब आता है सिकल सेल अनीमिया. ये ऑटोसोमल और रिसेसिव होता है. सो दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स व्हेन बोथ द पार्टनर्स दे आर कैरियर्स फॉर द जीन्स और दे आर हेट्रोजाइगस. सो द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील्स. HB इज फॉर हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन A इज द नॉर्मल वन और हीमोग्लोबिन S जहाँ पे वो सिकल सेल वाला है. तो नॉर्मल और सिकल सेल, तो ये लिखा हुआ है द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील्स. आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल्स फॉर HBS
they show the diseased phenotype. Heterozygous individuals, they appear apparently unaffected, but they are the carriers of disease, as there is 50% probability of the transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell trait. The defect is caused by the substitution of glutamic acid by valine. ग्लूटामिक एसिड पहले था, बाद में वैलिन आ जाता है एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. ये जो डिफेक्ट है सिकल सेल एनीमिया, ये आता कब है? ये कब आता है कि जो भी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 चेन्स होती हैं. बीटा एक्चुअली 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा की और 2 बीटा की. तो जो बीटा का जो चेन है ना, बीटा ग्लोबिन चेन, उसमें 6th पोजीशन वाला जो अमीनो एसिड होता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है. पर जब ये वाला डिफेक्ट आता है सिकल सेल एनीमिया, तो वो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन ले लेता है. तो इस यही बोला है कि डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. द सब्सटीट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट्स ड्यू टू द सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन एट द 6th कोडॉन. तो इसी वजह से जो 6 कोडॉन होगा वो GAG पहले था, GAG इज फॉर ग्लूटामिक एसिड, और अब वो GUG बन गया वो वैलिन के लिए. सो द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, causing the change in the shape of RBCs from biconcave disc to the elongated sickle cell like structure. अच्छा, this figure 5.15, that is a micrograph of RBCs and amino acid composition of the relevant portion of beta globin chain of hemoglobin. तो देखो जब नॉर्मल जीन था तो जब GAG था उसमें और CTC, वो जो 2 स्ट्रैंड्स दिए हुए हैं. अब mRNA जब बनता है तो GAG मतलब GAG और CTC में से CTC से GAG बन गया. अब सिकल सेल अगर जीन हो जाएगा तो अब वो जो mRNA बनेगा वो GUG बन जाएगा. क्यों? क्योंकि जब GAG वहाँ पे था, कहाँ पे, DNA मतलब हीमोग्लोबिन में, तो वहाँ पे GAG की जगह GTG आ गया था, जिसकी वजह से CTC था और उसके ऑपोजिट में CAC, और इसी वजह से GUG बन जाएगा GAG की जगह. इसी वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाएगा द 6th अमीनो एसिड पोजीशन ऑफ हीमोग्लोबिन. यस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है. दैट इज ऑल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. द affected individuals, they lack an enzyme that converts the amino acid phenylalanine into tyrosine, as a result of which this aniline phenylalanine is accumulated and converted into the phenyl pyruvic acid and other derivatives. देखो क्या होता है इसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया में, फिनाइलएलानिन जो कि अमीनो एसिड दैट इज़ नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू टायरोसिन. तो अब क्या होता है कि फिनाइलएलानिन वो एक्यूमुलेट हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में और उसके दूसरे डेरिवेटिव्स में. एक्यूमुलेशन ऑफ दिस फिनाइल पायरुविक एसिड इन द ब्रेन रिजल्ट्स इन द मेंटल रिटार्डेशन, एंड दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी. एक और चीज़ थी, याद है, फ्रक्टोज का पॉलीमर था इन्यूलिन, तो वो भी किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. इस वजह से आपकी अगर किडनी की फंक्शनिंग को अगर टेस्ट करना होता है तो यू गिव इन्यूलिन टू द पेशेंट, और अगर आपने जितना अमाउंट दिया है और उतना ही बाहर आ रहा है, सो दैट इज़ किडनीज आर ओके. थैलेसीमिया, दिस इज ऑल्सो ऑटोजोम रिसेसिव, ठीक है, ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स व्हेन बोथ द पार्टनर्स दे आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन. The defect could be due to either the mutation or deletion, which ultimately results in reduced rate of synthesis of one of the globin chains, alpha or beta chains, that make up the hemoglobin. अच्छा हाँ, इसी वजह से जैसे हमने बताया कि डिफेक्ट मतलब कि कोई भी म्यूटेशन डिलीशन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी ग्लोबिन चेन्स हैं अल्फ़ा या फिर बीटा, तो उनमें मतलब कि जो हीमोग्लोबिन बना रही है तो उनका एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो मतलब क्वांटिटी कम हो जाती है. यही लिखा हुआ है, द डिफेक्ट कुड बी ईदर म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन्स, अल्फा बीटा चेन्स, दैट मेक अप द हीमोग्लोबिन. दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इनटू एनीमिया, which is characteristic of this disease. So thalassemia can be classified according to which the chain of the hemoglobin molecule is affected. देखो, alpha thalassemia production of alpha globin chain is affected, while beta thalassemia production of beta globin chain is affected. Alpha thalassemia is controlled by 2 closely linked genes, HBA1, HBA2. ये 2 जीन्स हैं जो कि बहुत पास होती हैं, तो अल्फा थैलेसीमिया यही 2 जीन्स कंट्रोल करती हैं.
on chromosome 16 of each parent, and it is observed due to mutation or deletion of one or more of the 4 genes. The more genes affected, the less alpha globin molecules produced. While the beta thalassemia is controlled by a single gene, HBB, on chromosome 11 of each parent and occurs due to the mutation of one or both the genes. Thalassemia differs from sickle cell anemia in that the former ones, मतलब thalassemia, quantitative problem है of synthesizing too few globin molecules, while the latter is a qualitative problem, मतलब कि sickle cell anemia is a qualitative problem of synthesizing incorrectly functioning globin. तो आपको इसमें जो याद रखना है बस याद रखना है कि एक तो अल्फा थैलेसीमिया होता है, एक होता है बीटा थैलेसीमिया. अल्फा थैलेसीमिया जो है उसमें 2 जीन्स हैं, HBA1, HBA2 और क्रोमोसोम 16 है ना. और बीटा थैलेसीमिया जो है वो HBB जीन होती है, वो कंट्रोल करिए, जो कि 11th क्रोमोसोम पे होती है. ठीक है. यप. अब आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे. देखो, द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ऑन द अदर हैंड दे आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और द मोर क्रोमोसोम्स. सो failure of segregation of the chromatids during cell division cycle results in the gain or loss of chromosome, that is called aneuploidy. For example, aneuploidy actually कुछ भी अगर वो gain भी हो रहा है या loss भी हो रहा है क्रोमोसोम का सेल डिविजन साइकिल के दौरान, तो उसको aneuploidy बोलते हैं. For example, Down syndrome results in the gain of extra copy of chromosome 21. Similarly, Turner syndrome results due to the loss of X chromosome in human females. The failure of cytokinesis after telophase stage of cell division results in an increase in a whole set of chromosomes in an organism, and this phenomenon is called polyploidy. पॉलीप्लॉइडी होती है कि पूरा मतलब जैसे साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं पाई तो उसकी वजह से टीलोफेज के बाद तो क्या होता है कि पूरा का पूरा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम एक रिपीट हो जाता है. तो 2 मतलब पॉलीप्लॉइडी अगर एन था तो 2n टाइप का हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी एंड दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन केस ऑफ प्लांट्स. अच्छा, the total number of chromosomes in a normal human cell is 46, that is 23 pairs. Out of these, 22 pairs are autosomes, and one of the pairs of chromosomes, that is sex chromosome, known as allosomes. Allosome इसमें नहीं है. Sometimes, though rarely, either an additional copy of a chromosome may be included in an individual, or an individual may lack one of any one pair of the chromosomes. So these situations are known as trisomy or monosomy of a chromosome. So such a situation leads to very serious consequences in the individual. This is Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome. These are some of the common examples of chromosomal disorders. देखो Down syndrome में क्या होता है? The cause of this genetic disorder is the presence of additional copy of chromosome number 21, that is trisomy of 21st chromosome. This disorder was first described by Langdon Down in 1866. The affected individual is short statured, मतलब छोटा height, with small round head, furrowed tongue, partially open mouth. Palm is broad with a characteristic palm crease. Physical, psychomotor, mental development पूरा का पूरा retard हो जाता है. Klinefelter syndrome में क्या होता है कि this disorder, genetic disorder, is also caused due to the presence of additional copy of X chromosome resulting into the karyotype of 47 XXY. Such an individual has overall masculine development, but however, the feminine development, that is the development of breast, that is known as gynecomastia, is also expressed. So such individuals are sterile. इसमें एक्चुअली क्या करना है कि XXY है तो Y आ जा रहा है तो है तो मैस्कुलिन डेवलपमेंट पर X एक और आ गया तो इसकी वजह से फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि ब्रेस्ट का इलाज हो जाना, डेवलपमेंट हो जाना उनका, तो उनको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं. तो उनमें गायनेकोमेस्टिया और मस्कुलाइन डेवलपमेंट ये देखने को मिलता है. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. एंड टर्नर्स, सच अ डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द क्रोमोसोम्स X, मतलब 45XO. सच फीमेल्स, वहाँ पे एक्चुअली मेल होता है, क्लाइनफेल्टर मेल बोलते हैं, और टर्नर की फीमेल होती है, टर्नर्स फीमेल बोलते हैं. सो सच फीमेल्स दे आर स्टेराइल and their ovaries are rudimentary besides the other features including the lack of other secondary sexual characters. मतलब उनका ओवरीज तो रूडिमेंट्री हैं ही हैं और ऊपर से दूसरे सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इतने सारे जो होते हैं वो भी नहीं होते हैं टर्नर्स फीमेल में. देखो जो डायग्राम है 5.16 रिप्रेजेंटेटिव फिगर दैट इज शोइंग एन इंडिविजुअल इन्फ्लिक्टेड विद डाउन सिंड्रोम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द इंडिविजुअल. तो देखो ऊपर जो है दैट इज द फ्लैट बैक ऑफ द हेड, then many loops on the fingertips, palm crease, then the broad flat face, big wrinkled tongue and congenital heart disease.
फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन, क्लाइनफेल्टर और टर्नर दिया हुआ है। क्लाइनफेल्टर मेल है होता है ना, अभी बताया था, तो जो है टॉल स्टेचर विथ फेमिनाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और फीमेल टर्नर्स फीमेल विथ शॉर्ट स्टेचर एंड अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर।